So 14th question, 1 mole of an ideal monoatomic gas at temperature T0 expands slowly to the law P upon V raised to P upon V is equal to constant. Its final temperature is 2T0, heat supplied to the gases. सबसे पहले, this is not a process where Boyle's law is obeyed, right? So यहाँ पे P upon V is constant. So P V raised to -1 is constant. So if I compare, मैं compare इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जनरल फार्मूला यूज करने वाला हूँ. Comparing with PV raised to x is constant, so we get x equal to -1 basically, right? क्यों? क्योंकि हीट कैपेसिटी का एक जनरल फार्मूला है that you can work out and you should work out. So heat capacity is given by so heat capacity का फार्मूला जो है it is basically C is equal to, ये पता होना चाहिए आपको, R upon gamma minus 1 plus R upon 1 minus x. तो when I gave you this as an assignment, I was expecting कि आप लोग ये फॉर्मूला डिराइव करोगे. This was my expectation from your side. हमको पता है gamma की वैल्यू फॉर आइडियल मोनोटॉमिक गैस, फॉर एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, गामा आपको पता है 5/3 होता है. x तो हमने अभी भी कंपेयर करके निकाल लिया, तो हमको मिल गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी R अपॉन 5/3 -1 प्लस R अपॉन 1 माइनस ऑफ -1. So you have to solve this. That is pretty simple. 5/3 -1 is 2/3, 3/2, 3/2 plus R/2, 4/2, 2R आ जाएगा ये. This is 2R. और हमको पता है हीट सप्लाइड पूछा है, तो हीट सप्लाइड डेल्टा Q इज N नंबर ऑफ मोल्स, C डेल्टा T स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा T. हमने ये पहले भी यूज़ किया है ये फार्मूला. तो N is 1 because we're talking about 1 mole of a gas here, and C we have found out 2R, and delta T change in temperature they have told you already that final temperature becomes 2T0 and initial is T0. तो T final minus T initial करना पड़ेगा, so that will be 2T0 minus T0. Okay, so you have to wait because it hanged. Sorry, happens sometimes. Yeah, so it was 2T0 minus T0, and that is just T0. So 2R T0 is the amount of heat supplied to the gas. This is the final answer that you should be having. Okay, so next question. 15 number. A cylinder has a capacity of 20 liters. A cylinder of capacity 20 liters is filled with H2 gas. The total average kinetic energy of translatory motion of its molecule is 1.5 Newton per 5 joule. The pressure of hydrogen in the cylinder is. तो हम लोगों को एक्चुअली हाइड्रोजन गैस का टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन बता दिया गया है. हमको पूछा है कि प्रेशर क्या होगा. तो वन थिंग इज दैट कि इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने जब प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस का डेरिवेशन किया था, दैट वाज द ओनली बिगेस्ट डेरिवेशन एंड इज द ओनली बिगेस्ट डेरिवेशन इन योर टेक्स्ट बुक, राइट. तो काइनेटिक तरीका एक ही वो प्रेशर का डेरिवेशन था. उसमें अल्टीमेटली हमने ये भी प्रूव किया था कि प्रेशर इज 2/3 E/V. कर सकते हो. प्रेशर इज दिस. कैसे? एनर्जी आपको पता है 3/2. हम लोगों ने यह तो प्रूव किया था, यू मस्ट रिमेंबर दिस. 3/2 PV, दिस वाज एनर्जी एंड वी हैव डिराइव्ड दिस. बाद में हम लोग nRT लिख के फिर 3/2 RT दैट इज एनर्जी ऐसा लिख देते हैं, बट वी नो प्रेशर इज दिस वैल्यू. अब आपको E दिया है, आपको V दिया है, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज. तो 2/3 E is 1.5
1.5 into 10 power 5, and 20 liters has to be converted into meter cube. 10 power minus 3 में होता है वो. 1 जा 2 जा 1 जा 10 जा 1 by 20 into 10 पावर माइनस 3, और ये ऊपर 10 पावर आपका प्लस 5 है. तो नीचे मैं एक काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 by 20 आई राइट 2, और ये 10 पावर माइनस 2, ये ऊपर जाके प्लस 2 होगा तो 10 पावर 7 हो जाएगा आपका. ये 1 by 2 is 0.5, so 0.5 into 10 power 7, which means 5 into 10 power 6 Newton per meter square, that is Pascal. तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16th. Okay, so a box containing n molecules of a perfect gas at temperature T1 and pressure P1. The number of molecules in the box is doubled, keeping the total kinetic energy of the gas same as before. If the new pressure is P2, temperature T2, then okay. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल किए हैं, एनर्जीज आर इक्वल, मतलब E1 is equal to E2, but you must know that E is equal to 3 by 2 NKT. ये हमने ऑलरेडी करके रखा है, फ्रॉम इक्विपोटेंशियल थ्योरम भी आता है ये. गुड, राइट. तो अब E1 इक्वल टू E2 है ना, तो हम लोग E1 इक्वल टू E2 यूज कर लेंगे, और हमको पता है E1 आएगा 3 by 2 N1 K T1 एंड 3 by 2 N2 K T2. तो 3 by 2 कैंसिल, K और K भी कैंसिल, तो N1 T1 equal to N2 T2, but we know that N1 is N, T1 is T1 basically, N2 is 2 times of N, क्योंकि बोला है डबल कर दिया हमने. तो हमको मिल गया T2 is equal to T1 by 2, right? So T2 is equal to T1 by 2, that is what we have obtained. और एक चीज हमको मिली यहाँ से, from here you can also say that product of N into T is a constant, right? So product of N into T is a constant. तो और आपको पता है क्योंकि ये आइडियल गैस होगा, तो आइडियल गैस होगा तो PV इज इक्वल टू NKT होता है. यू नो दिस, राइट? PV इज इक्वल टू NKT होता है. सो फॉर एन आइडियल गैस PV इज इक्वल टू NKT. K कांस्टेंट, N कांस्टेंट, T कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो NT इक्वल टू कांस्टेंट हमने प्रूव किया है ऊपर, बिकॉज N1 T1 इक्वल टू N2 T2 इक्वल टू N3 T3 ऐसा होता जाएगा. तो NT इज कांस्टेंट, तो दिस इज कांस्टेंट. इसका मतलब होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2. गुड. लेकिन वॉल्यूम हमने कहाँ चेंज किया? बोला है कि वॉल्यूम चेंज किया? नहीं. उन्होंने क्या बोला है कि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल किए, बट दे आर नॉट टेलिंग यू दैट वॉल्यूम वी हैव डबल्ड और समथिंग लाइक दैट, बट गिवन वॉल्यूम्स आर इक्वल, देयरफॉर यू विल गेट P1 इक्वल टू P2, राइट? तो देखो हमने क्या किया, बेसिकली हमको पता है E इज इक्वल टू 3 by 2 NKT होता है, और E1 इक्वल टू E2 बोला है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन. तो हम सॉल्व करते गए तो T2 मिल गया T1 by 2, और हमको एक चीज़ और मिल गई NT इक्वल टू कॉन्स्टेंट. बट फॉर एन आइडियल गैस PV इज इक्वल टू NKT, NT कॉन्स्टेंट, K कॉन्स्टेंट, तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2. बट वी आर नॉट चेंजिंग वॉल्यूम, वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो V1 इक्वल टू V2, सो P1 इक्वल टू P2, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, V1 इक्वल टू V2 डालोगे ना, तो what you will get ultimately is this P1 V1 इक्वल टू P2 V1, क्योंकि V1 इक्वल टू V2 है, फिर ये कैंसिल हो जाएगा. तो P1 इक्वल टू P2 मिल गया, और T2 इक्वल टू T1 by 2 मिल गया. कहाँ पे है ऐसा? देख लो, ऑप्शन नंबर बी में है. तो यू कैन सी दिस इन ऑप्शन नंबर बी. All right, question number 17th. An ideal gas is initially at a temperature T and volume V. Its volume is increased by delta V due to an increase in temperature delta T. Pressure remaining constant, तो isobaric process है.
the quantity delta is equal to delta V upon V delta T varies with temperature S. तो क्वेश्चन इज नॉट रियली डिफिकल्ट. शुरुआत कहाँ से करेंगे? आइडियल गैस बोला है, राइट? सो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन we already know what is ideal gas equation. PV is equal to RT. If we take derivative of this, so P delta V plus V delta P, but delta P हो नहीं रहा, चेंज इन प्रेशर नहीं है तो मैं लिखूंगा नहीं. R तो कांस्टेंट ही है और डेल्टा T, तो हम लोग सिर्फ डेरिवेटिव ले रहे हैं, राइट? अब हमको क्या चाहिए? हमको डेल्टा V बाई V चाहिए, बराबर है ना? हमको देखो ग्राफ में क्या बोला है, स्मॉल डेल्टा दैट इज कैपिटल डेल्टा V अपन V कैपिटल डेल्टा T, इसका वेरिएशन विद टेम्परेचर, मतलब मुझे डेल्टा V बाई V लाना है. तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर लेता हूँ दोनों साइड्स को, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वॉल्यूम, राइट? और सिंपली व्हाट यू कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, ऐसा कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट लेट मी से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, तो ये इजी है, डिवाइडिंग 2 बाय 1. तो P डेल्टा V अपॉन PV is equal to R delta T upon RT. Cancel, 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 cancel. Okay. So delta V by V equal to delta T by T. Therefore, delta V upon V delta T is 1 upon T. Right. Therefore, small delta, क्योंकि delta V by V delta T को small delta बोला है, is equal to 1 by T. Right. अब आपको पता होना चाहिए, this is basically inverse relation, delta is equal to 1 by T. So you should know, inverse मतलब exponential लिखते हो ना, right? T raised to minus 1. So you should know this graph looks like this is decreasing exponential, nothing else. Delta is decreasing exponentially with time, like kind of this. Okay, तो ये आपको पता होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी आएगा. कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, there was nothing, really nothing. क्योंकि you just have to do what? You have to take ideal gas equation PV equal to RT for 1 mole of a gas, then take derivative P delta V equal to R delta T, then divide these two. तो आपको मिल गया delta V upon V delta T equal to 1 by T, but that is delta V upon V delta T is small delta, so small delta is T raised to minus 1. That's it, option number C. Okay, let's move to next question. CO2, OCO, that is the structure of CO2, is a triatomic gas. Mean kinetic energy of 1 gram gas will be. तो 1 ग्राम गैस का मीन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. वाई? हमको पता है टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, है ना? अभी 3/2 क्यों लिया फिर मैंने? I should not be taking 3/2 because that is only for translation. तो ऐसा करेंगे, हाफ kT होता है, आपको पता है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ kT एनर्जी एसोसिएटेड होता है, हाफ kT विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय F, where F is nothing but number of degrees of freedom multiplied by number of moles N. करेक्ट? एक मोल होगा तो एक, सिंपल, राइट, गुड. बट यहाँ पे मैंने n क्यों लिखा? क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, और आपको याद होगा मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला कैसे लिखते हो. तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, दैट n इज स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, where स्मॉल m इज मास इन ग्राम, कैपिटल M इज मॉलिक्यूलर वेट. ये पता होना चाहिए. दूसरा, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे आएंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ट्रांसलेशन, फ्रॉम रोटेशन, फ्रॉम वाइब्रेशन. आपको याद होगा ट्राइएटॉमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए, लेकिन यहाँ पे ट्राइएटॉमिक है, 3 ट्रांसलेशन होते हैं,
यहाँ पे रोटेशन के दो ही होंगे क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर मॉलिक्यूल में पता होता है आपको कि लीनियर मॉलिक्यूल में देर आर ओनली टू वेज। एक ये हो गया, along this rotation makes any contribution, and along this axis rotation makes any contribution, right? जिस in the direction of bond length, मतलब ये COC जो बॉन्ड है इसके अलॉन्ग रोटेशन मैटर नहीं करता क्योंकि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है इसलिए। तो रोटेशनल दो होते हैं और वाइब्रेशनल भी यहाँ पे दो होते हैं। तो टोटल 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो आपको मिल जाएगा, बाय द वे एन भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। एन इज व्हाट, 1 ग्राम ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज 44। तो ये सब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे ई में, देयरफॉर ई विल बी इक्वल टू स्मॉल एन दैट इज 1/44, एफ इज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम and 1/2 kT, so 7/88 NKT। ऐसा आपका ऑप्शन आना चाहिए, इट इज़ ऑप्शन डी। तो बहुत सिंपल था, यू जस्ट हैव टू नो कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ kT मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम multiplied by number of moles. Moles is small m upon capital M, mass in gram upon molecular weight, 1/44. Number of degree of freedom लीनियर मॉलिक्यूल के लिए आपको निकालते आना चाहिए था। जब ये मॉलिक्यूल मूव होगा तो 3 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 रोटेशनल एंड 2 वाइब्रेशनल, तो ओवरऑल आपको मिल जाएगा 7। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड यू कैन सॉल्व इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so 1 mole of a monoatomic ideal gas undergoes process A to B as in given PV diagram. The specific heat for this process is, तो आपको specific heat निकालना है इस process के लिए। तो question is really good. You should know how to find out specific heat first of all. उसके लिए you should know that the amount of heat supplied delta Q is given by N C delta T। यहाँ पे CV CP मत लिखना, specific heat बोला है यहाँ पे, at constant volume constant pressure से कुछ नहीं बोला है। तो C will be is equal to delta Q upon N delta T चाहिए होगा हमको। तो हमको पहले डेल्टा Q फाइंड करना है, फिर NT फाइंड करना है। बट हमको क्या पता है फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डू वी नो दिस, दैट इज डेल्टा U प्लस W अपॉन N डेल्टा T, राइट। तो बेसिकली अगर मुझे C चाहिए तो आई विल नीड द वैल्यूज ऑफ डेल्टा U, W एंड डेल्टा T। This is one thing, okay, and you can find out n delta T because मिल जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले वन बाय वन let's talk about change in temperature, okay। तो टेम्परेचर एट ए कैसे निकालेंगे हम लोग, हाउ डू यू फाइंड आउट टेम्परेचर एट ए? डू यू रिमेंबर PV is equal to RT? yes, so PV is equal to RT, तो T is equal to PA VA upon RA। RA means R is constant, sorry for that। Similarly, TB is PB VB upon R। और 1 मोल है तो मैं इसलिए N की वैल्यू लिख नहीं रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे N आता, तो N की वैल्यू 1 है तो आई एम नॉट राइटिंग डाउन बिकॉज इट्स 1 मोल ऑफ गैस, राइट। तो अब टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन इट इज एट A is PA and the value of PA is 2P0, so 2P0 from graph, or VA is just V0 from graph upon R। Similarly, TB, that is PB, PB is 4P0 and volume is also 4V0 upon R। तो ये आ जाएगा आपका 16P0 V0 by R। तो डेल्टा T that is final temperature, मतलब temperature at B minus temperature at A will be 16 P0 V0 by R minus 2 times of P0 V0 by R, that is 14 times of P0 V0 by R। तो हमको डेल्टा T मिल गया। N तो 1 था, तो इस फॉर्मूला में मैं ऑलरेडी N की वैल्यू जो है वो 1 लिख देता, राइट। डेल्टा T मिल गया। अब क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। तो वी हैव ऑब्टेन्ड दिस थिंग।
लेट्स गिव सम नंबर्स, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हमको चाहिए वर्क डन। वर्क डन क्या होता है फिर? वर्क डन यू ऑलरेडी नो, इफ यू रिमेंबर, हाउ डू यू फाइंड आउट वर्क डन? P डेल्टा V, राइट? P डेल्टा V होता है ना वर्क डन इन एक्सपैंडिंग द गैस इज इनिशियल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये याद रखना, हाँ। गुड, you should remember this, otherwise it will be gone। या फिर आप ऐसा भी लग सकते हो V डेल्टा P। अदरवाइज गुड। वन मोर थिंग इज, अगर आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था, थ्योरी में बताया था, वर्क डन, आई रिमेंबर वेरी वेल, थ्योरी में मैंने बताया था वर्क डन इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज एरिया अंडर द कर्व। मतलब ये एरिया की बात चल रही है, ए बी कर्व के अंडर जो एरिया होगा उसकी बात चल रही है। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे फिर? तो व्हाट वी कैन डू इज ये मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ रेड कलर में। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते आता है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते आता है। तो आई विल से वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व AB। Good. And how do we find out area under the curve? That will be area of rectangle, जो भी नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे C बोल देंगे, इसको D बोल देंगे, इसको यहाँ पे E बोल देंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मान लो रेक्टेंगल है ACDE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा? ABC। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? यू ऑलरेडी नो दिस, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब साइड AE multiplied by side ED, okay, plus area of triangle is half base into height, base is AC, height is BC। What is AE? 2P0 minus P0, that is 2P0। What is ED? 4V0 minus V0। अच्छे से रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके कन्वीनियंस के लिए। AE is 2P0 minus P0 minus 0, not P0, minus 0, okay, that is simply 2P0। and then DE is value at D minus value at E, तो 3V0 आ जाएगा। Similarly base BC will be 4P0 minus 2P0, तो 2P0 आ जाएगा। and AC is again equal to DE, तो AC और DE इक्वल है तो हम बार बार नहीं करेंगे, okay, so these two values are equal anyways, all right। तो ये दो वैल्यूज इक्वल है। तो ED की वैल्यू हमारे पास है, मतलब D की वैल्यू हमारे पास है 3 टाइम्स ऑफ V0 है, प्लस हाफ AC हमारे पास वापस से 3V0 है और BC 2P0 है। तो इसको सॉल्व करो, कैंसिल एंड कैंसिल, 2 into 3 is 6 and 3 that is 9। so 9P0 V0 ये हो गया वर्क डन इन एक्सपेंडिंग गैस फ्रॉम A to B। okay, let me go to new page, or otherwise let me just, this is better thing to do, good enough, okay। अब what else do we know, okay, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अलावा और? अब हमको क्या फाइंड करना है? वर्क डन मिल गया, तो ये वर्क डन का इक्वेशन आ गया, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ, 9P0 V0, दैट्स नथिंग बट इक्वेशन नंबर 3। गुड, राइट। हमको भी चाहिए डेल्टा यू, एंड इफ यू रिमेंबर डेल्टा यू जो था दैट वाज NCV डेल्टा T, राइट। N तो 1 है, N इज 1। CV मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू होती है 1, 3/2, सॉरी 3/2। ये पता होगा तो ही सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा।
अगर आपको याद है, इफ यू रिमेंबर दिस, दैट CV फॉर मोनोटोमिक गैस इज 3/2R, तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, 3/2R वैल्यू होती है, हमने किया है ये। डेल्टा टी हमने फाइंड करके रखा है 14 टाइम्स ऑफ P0 V0 बाय R। ओके, R और R कैंसल, 1 और 7 जा, तो 7 से जा 21, तो 21 P0 V0 ये आ गया डेल्टा U, इक्वेशन नंबर 4। तो 2, 3 और 4 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, देयरफॉर फ्रॉम 1, 2, 3 and 4, C is equal to delta U. Delta U is 21 P0 V0. Work done is 9 P0 V0 upon delta T is 14 P0 V0 by R. तो ये आपका जाएगा C is equal to 30 times of P0 V0 upon 14 times of P0 V0 into R. तो 30 upon 14 is 15 by 7, P0 V0 cancel, तो 15 by 7 times of R। ये आपका होना चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, specific heat. So 15 by 7 by 7 R. So you can just write it down. I don't find space here, so I'll write it down somewhere here. C is equal to 15 R by 7। आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा है। तो व्हाट वी हैव डन इज, हमको स्पेसिफिक हीट पूछा, सबसे पहले पता होना चाहिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो सी इज डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज डेल्टा यू प्लस वर्क डन एंड अपॉन एन डेल्टा टी है, एन की वैल्यू 1 है। तो अभी हमको सी चाहिए, तो डेल्टा यू, डब्ल्यू और डेल्टा टी चाहिए। डेल्टा टी निकालने के लिए टेम्परेचर एट ए, टेम्परेचर बी यूज फाइंड करना पड़ेगा, और उसके लिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ किया हुआ है। तो हमको टी ए टी बी मिल गया, दोनों को सब्ट्रैक्शन कर दिया तो डेल्टा टी मिल गया। वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व हमने निकाल लिया। ओके, दैट इज 9 P0 V0। देन डेल्टा U is NCV delta T and CV is 3/2R for a monoatomic gas। और डेल्टा टी आपने फाइंड करके रखा है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड देन यू गेट 15R/7। All right, so let's go to next and the last question from today's session. The total kinetic energy of all the molecules of helium having a volume V exerting a pressure P is 1500 joule. The kinetic energy in joules of all the molecules of nitrogen having the same volume V and exerting a pressure 2 times of P is। बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि हमको एनर्जी का फॉर्मूला पता है, राइट? और बाय द वे वी आल्सो नो दैट PV इज इक्वल टू nRT। हमको पता है n is n upon Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर RT, राइट? ये हमको पता है। नाइट्रोजन के लिए मैं लिखता हूँ अगर, तो फॉर नाइट्रोजन N2 अगर मैं लिखता हूँ, ओके, तो प्रेशर था 2P, वॉल्यूम था V, गुड, राइट, ऑलराइट। तो N नंबर ऑफ नाइट्रोजन को मैं N ही बोलता हूँ अपॉन NaRT। सिमिलरली मैं अगर हीलियम की बात कर रहा हूँ, फॉर हीलियम दैट इज He, ओके। अब PV, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, N डैश अपॉन NaRT लिखता हूँ। नंबर ऑफ हीलियम इज N डैश, और यू कैन सिंपली से दिस लाइक NHE, बट डजंट मैटर, पता है हमको हम क्या कर रहे हैं। ओके, वी नो व्हाट वी आर डूइंग, सो डजंट मैटर। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं 1 और 2 को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग 1 and 2, समझेगा लास्ट में कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। तो 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो 2PV अपॉन PV N बाय NaRT N डैश बाय NaRT। तो व्हाट विल सर्वाइव इज, सब कैंसिल हो जाएगा,
एन कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया। आपको सिर्फ मिलेगा n अपॉन n डैश, इफ आई एम नॉट डूइंग इट रॉन्ग, इज इक्वल टू 2, राइट। तो हमको मिल गया n इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n डैश, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इज ट्वाइस दैट ऑफ हीलियम। मतलब ये होता है। हमको पता है एनर्जी का, जब हम लिखते हैं, राइट, व्हेन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वी नो दैट एनर्जी क्या होता है। एनर्जी इज 3/2 NKT, है ना। हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी 3/2 KT, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करेगा और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो इसलिए NKT। तो वापस से फॉर हेलियम, हेलियम के लिए एनर्जी आएगा E इज इक्वल टू 3/2 n डैश KT, क्योंकि हेलियम के लिए n डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए हैं, तो E इज इक्वल टू 3/2, और E की वैल्यू डाल देते हैं हम लोग बेसिकली, डजंट मैटर, okay, doesn't matter. Anyways, I'll just keep it like this. I'll write E helium and E helium here also. That is 3/2 and n dash is n/2 KT. Good. आपको सिर्फ सॉल्व करना रहेगा, एंड इफ यू डोंट वांट टू डू दिस वे, देयर इज अनदर वे आउट। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, इफ यू वांट टू डू इट, if you want to do that way, just a minute, it is taking a little bit of time to scratch things that I've written, not little bit but a lot. Anyways, I'll not go into that thing now. So helium के लिए 1500 जूल का एनर्जी दिया है, ओके, एंड व्हाट वी नो इज 3/2, n डैश वाज n/2 KT। तो हमको मिल गया यहाँ से n KT का वैल्यू, 1 जा 500 जा 3 5 15, so 500 into 4, 500 into 4 is 2000। तो n KT का वैल्यू मिल गया। फॉर नाइट्रोजन आपको पता है, नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, E पता होना चाहिए। व्हाट इज फॉर नाइट्रोजन, यू हैव टू फाइंड आउट नाइट्रोजन के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, KT 5/2। वाई 5/2? बिकॉज नाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस। NKT का वैल्यू आपको पता है, you have to substitute the value and then you have to solve it and you will get your answer। तो ये कंप्लीट आप खुद करोगे, you will do it on your own because I have given you, और हो गया है ना सॉल्व, ये 5000 आंसर आएगा ना, तो ये सॉल्व हो चुका है। कैसे, 5/2 NKT, NKT 2000 है, तो 2000/2 is 1000 and into 5 that is 5000, तो 5000 जूल्स तो है ना आंसर उधर सी ऑप्शन में। तो मैंने क्या किया, इन शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है, यस करता है। कैसे करता है, बहुत सिंपल, आपको ओरली ये पता होना चाहिए था, जस्ट बाय यूजिंग PV इज इक्वल टू NRT की n इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n डैश, मतलब नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इज 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ हेलियम मॉलिक्यूल्स। अगर आपको इतना भी पता था तो डायरेक्टली एनर्जीज का रेशियो ले सकते थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आई विल गो टू नेक्स्ट पेज एंड टेल यू व्हाट आई एम सेइंग। Okay, let me go to next page, a new page. Good. What I am saying is number of N2 is 2 times of number of helium। अगर ये पता होता, हमको एनर्जी निकालना था किसका, नाइट्रोजन का, राइट। तो EN2 अपॉन E हीलियम अगर मैं करता, मुझे पता है ये होता है 5/2 NN2 KT, और ये होता है 3/2 N हीलियम KT, राइट। तो 2 तो पहले ही गया, KT भी गया, KT भी गया, तो आपको मिल गया EN, ये शॉर्टकट है बेसिकली। तो 5/3, गुड, 5/3 NN2 अपॉन N हीलियम इंटू E हीलियम, NN2 अपॉन दिस इज 2, तो 5/3 and this is 2 and this
was 1500, 1 जा 500 जा 15 3 5 जा। तो इसको सिर्फ सॉल्व करोगे आप, 5 इंटू 2 इज 10 इंटू 5 5000, तो 5000। तो शॉर्टकट भी एग्जिस्ट करता है। जो लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट मेथड मैंने बताया है वो थोड़ा लंबा था। यहाँ पे सिर्फ मैंने डायरेक्टली एनर्जी का रेशियो ले लिया। जब प्रेशर डबल हुआ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल हुए, ऐसा मुझे पता होना चाहिए था। तो इफ यू नो ऑल दिस देन यू कैन सॉल्व इट वेरी क्विक। सो रिमेनिंग टुमारो।